हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं। तो जिन्होंने हमारा सॉलिड स्टेट का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के सेकेंड लेक्चर से। So students, in first lecture we have covered introduction, types and classification. Okay, this part we have covered. Now in today's class we will be covering with crystal structure. In that we will do crystal lattice and what is crystal basis and unit cells. And in unit cells we will do types, classification and the contribution and number of atoms per unit cell. This much part we will do in today's class. Start karte hain with crystal lattice, or it is also called as space lattice. So it is a regular repeating geometric arrangement of constituent particles in three dimensional periodic array. It means क्या होता है स्टूडेंट्स, सपोज ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ओके, ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। नेक्स्ट ये, सो एज दिस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, करेक्ट। और सो सेम ऑर्डर is repeating in entire space. So this regular repeating arrangement of constituent particle will form a crystal lattice, or it is also called as space lattice. Okay, now we will do some characteristics of crystal lattice. So this point, every point is called as lattice point or lattice site. So each point in a lattice represents one constituent particle, and that constituent particle may be an ion or atom. Means this point, it is called as lattice point. To this lattice point constituent particles are attached. Okay, so ये lattice point के ऊपर constituent particles attached रहते हैं। Okay, so this lattice point and constituent particles which are attached to this lattice points will form a crystal. Now we will do the third point. इसमें देखो, ये जो लाइंस होते हैं ना, सपोज अगर मैंने इनको कनेक्ट करने के लिए एक लाइन बना दिया ऐसे, नाउ ये लाइंस इमेजिनरी होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा रियल में लाइंस नहीं होते। So these lines are imaginary and this lines has been drawn to understand the geometry. Okay, so lattice points are joined by the straight line to bring about the geometry. Now we will start with basis. Basis क्या है? It is a constituent particle that is attached to the lattice point. तो बच्चों ये lattice points है और इस lattice points को constituent particles attached रहते हैं और उस constituent particles को हम लोग basis कहते हैं. So as I say, lattice points and basis togetherly forms crystal. ठीक है। Now to make you understand this in a better way, I have an analogy. Okay, तो हम लोग ये क्रिस्टल लैटिस को अपना क्लासरूम जैसा समझते हैं। तो क्लास में बेंचेस होते हैं कि नहीं? सो ये बेंचेस को हम लोग एनालॉगस पकड़ते हैं लैटिस पॉइंट से, एंड बेंचेस के ऊपर स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो हम लोग स्टूडेंट्स को पकड़ते हैं एनालॉगस टू बेसिस। Therefore, classroom में students plus benches, right? So students plus benches will form classroom. Likewise, basis and lattice will form a crystal. This is a very important analogy and this will help you to understand in a better way. ठीक है? So अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं with unit cell. Unit cell is the smallest repeating structural unit in a crystalline solid. Okay, unit cell is a fundamental building block of a crystal. So अभी देखो, सपोज इसको समझने के लिए आया वन एनालॉजी। सपोज ये पूरा वॉल है, ठीक है। अभी वॉल किससे बना है? ब्रिक से ना। मींस ब्रिक इज रिपीटिंग इन ऑल स्पेस टू फॉर्म ए वॉल। सो ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ वॉल। इन द सेम मैनर यूनिट सेल जो है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल। ठीक है, तो एनालॉजी समझ में आया? देखते हैं यूनिट सेल पैरामीटर्स। सो देयर आर 6 यूनिट सेल पैरामीटर्स आर देयर। 3 are axial lengths and 3 are axial angles. Axial lengths are A, B and C
Axial angles are designated as alpha, beta and gamma. तो students, alpha is the angle between B and C, beta is the angle between A and C, and gamma is the angle between A and B. ना इसको समझने के लिए हमने एक इजी तरीका बनाया, इसको याद रखने के लिए हमने एक इजी तरीका बनाया. सो देखो, अल्फा को ए के जैसा समझने का, अल्फा इज एनालॉगस टू ए, राइट ना, अल्फा ए, राइट. बीटा को बी जैसा समझो, बीटा बी, बीटा बी, करेक्ट. गैमा को सी जैसा समझो, बचा कौन है ना, गैमा और सी ना, करेक्ट. सो अल्फा इज एनालॉगस टू व्हाट, ए. तो बचा कौन, बी एंड सी. तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, समझा. देखो बीटा किसके एनालॉगस है, बी से ना, तो बचा कौन, ए एंड सी. तो बीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी. गैमा किसका एनालॉगस है, सी का, तो बचा कौन, ए एंड बी. तो गैमा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी वे टू रिमेंबर द टॉपिक फॉर अ लॉन्गर टाइम. ऐसे हम लोग बहुत सारे शॉर्टकट्स हम लोग अपने लेक्चर्स में करने वाले हैं, जिससे आप सबको बहुत बहुत फायदा होगा स्टूडेंट्स. ठीक है. सो द मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल इज क्यूबिक यूनिट सेल and the most unsymmetrical unit cell is triclinic unit cell. तो what is cubic, what is triclinic, वो सब हम लोग आज का लेक्चर में देखने वाले हैं. ठीक है. सो अभी हम यूनिट सेल पैरामीटर्स और लैटिस पैरामीटर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. तो देखो, ये एक एग्जांपल ऑफ यूनिट सेल है. ठीक है. नाउ ये जो एटम्स है वो कॉर्नर एटम्स है. ठीक है. दिस ब्लू वन ना, दे आर कॉर्नर एटम्स. एंड ये जो लाइंस है ना, ये इसको कहते हैं एज. जैसा मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि ये लाइंस कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन वी कैन ओनली गेट ज्योमेट्री. सो देखो, सी, दिस इज हाउ एग्जैक्टली यूनिट सेल लुक्स इन 3 डायमेंशंस. ठीक है. सी, इजंट इट ब्यूटीफुल. देखो, अभी देखो, ये जो येलो लाइंस है ना, ये मान लो बी है, तो ये भी क्या है, बी है. ये भी बी है और ये लाइन भी क्या है, बी है. दिस व्हाइट लाइन ना, इसको ए समझो. तो अगर ये ए है तो ये भी क्या रहेगा, ए रहेगा ना. ये वाला क्या रहेगा, ये भी ए रहेगा. ये वाला क्या रहेगा, ये भी क्या रहेगा, ए रहेगा. सही है. अभी देखो, अभी सपोज ये लाइन सी है, तो अगर ये सी है तो ये भी सी है, ये भी सी है और ये भी क्या है, सी है. सो एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो मिसिंग कौन है, सी. सी का करस्पॉन्डिंग क्या होता है, गैमा. तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज गैमा. अंडरस्टूड. सो एंगल बिटवीन ए एंड सी, बचा कौन, बी ना. बी का करस्पॉन्डिंग क्या, बीटा. एंगल बिटवीन सी एंड बी, तो बचा कौन, ए ना. तो ए का करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट क्या है, अल्फा. So these are all lattice parameters. Okay. Now we will do classification of unit cells. Unit cells are classified into 2 major categories. Primitive unit cell और उसको कहते हैं simple unit cell. Second category non-primitive unit cell और centered unit cell. So अभी देखते हैं उसका meaning क्या है. ठीक है. So देखो, in case of primitive unit cell, atoms are present only at corners. You will find atoms only at corners in case of primitive unit cell. Now, in case of non-primitive unit cell, along with corner atoms, there exist some atoms at some other places in unit cell. Okay, तो major distinction क्या हुआ, simple unit cell में और primitive unit cell में atoms सिर्फ और सिर्फ corners पे है. Whereas non-primitive unit cell में और centered unit cell में atoms corner पे तो है ही, but कुछ other places में भी है unit cell के अंदर. ठीक है. So primitive unit cell का पहला example समझते हैं. Example of primitive unit cell is simple cubic. ठीक है. So देखो, ये simple cubic structure है. इसमें atoms कहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है. वी आर नॉट एबल टू सी द एटम एट एनी अदर प्लेसेस अदर देन कॉर्नर्स, राइट. इसलिए इसको हम लोग सिंपल क्यूब कहते हैं और उसको हम प्रिमिटिव कहते हैं. ठीक है. सो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड.
Now in case of body centered unit cell, atoms are present at corners as well as at the body centered position. Example is body centered cubic. So देखो ये जो है एटम्स कॉर्नर पे तो है, साथ ही में एटम्स क्या है बराबर बॉडी के सेंटर्ड पोजीशन में, तो इस यूनिट सेल को कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. सो देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है, सी इसमें एटम्स जो है सिर्फ कॉर्नर पे है और इसमें कॉर्नर्स पे तो है ही बट कुछ अदर पोजीशन, तो जो कि ये इसमें बॉडीज के सेंटर में, इसलिए इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं. नाउ फेस सेंटर. फेस सेंटर में एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑब्वियसली, and along with corner atoms are present at all face centers. So देखो corners पे तो है, see this is the face, these are the face center atoms, right? कितने faces होते हैं? 6 faces होते हैं, तो see there are 6 face center atoms. So this is the example of face centered cubic unit cell. अभी end center देखते हैं. end center में क्या होता है, atoms corner पे तो रहेंगे ही बट कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर्स में रहेंगे. जैसे कि इसमें देखो, इसमें यहाँ पे लेट से ये दो अपोजिट फेजेस तो बराबर उसके सेंटर में एटम्स, तो ये हो गया एंड सेंटर. तो स्टूडेंट्स आप लोग ये भी फेस सेंटर को ये दो अपोजिट फेस ले सकते हो, नहीं तो ये वाले दो अपोजिट फेस है ना वो भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि ये लेने का करके, ठीक है. सो एनी टू अपोजिट फेजेस क्राइटेरिया शुड बी फॉलोड हियर. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल. अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. So see there are 7 major types of unit cells. First is cubic. तो हम लोग cubic से शुरू करते हैं. Cubic is classified into further simple cubic, body centered cubic and the face centered cubic. तो ये कितना है, 3 टाइप्स है ना, इसके लिए मैंने इधर 3 लिखा है, ठीक है. समझा है 3 क्यों लिखा है, it has 3 types. Now cubic केस में एक्सियल लेंथ क्या होगा, सारा इक्वल होगा, A is equal to B is equal to C and axial angles alpha is equal to beta is equal to gamma equals to 90 degree. So सारा axial length equal है, सारा axial angles equal है. That is why cubic unit cell is most symmetric unit cell. Most symmetric unit cell. Understood? Now we will go for tetragonal. ये दो देखो, टेट्रागोनल में कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है. क्या है, प्रिमिटिव है एंड बॉडी सेंटर्ड. तो टेट्रागोनल में क्या होगा, ये दो अनइक्वल होगा, तो B इज नॉट इक्वल टू C बट A इज इक्वल टू B, ठीक है, और एंगल सारे इक्वल हो गए, उसके करस्पॉन्डिंग ये एग्जांपल्स है. देन ऑर्थोरोम्बिक. ऑर्थोरोम्बिक के कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर. इसके लिए मैंने इधर 4 लिखा है. ऑर्थोरोम्बिक में ना एक भी एक्सियल लेंथ इक्वल नहीं है, A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C, बट सारे के सारे एक्सियल एंगल्स इक्वल है. मोनोक्लिनिक के कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है, एक प्रिमिटिव है और एक एंड सेंटर्ड है. मोनोक्लिनिक में क्या होता है, एक भी एक्सियल लेंथ इक्वल नहीं है, ओके, एंड अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दैट इज नॉट इक्वल टू बीटा, ठीक है. तो ये दो एंगल्स इक्वल है. नाउ हमारा जो बीटा है इन दोनों से इक्वल नहीं है. अभी ट्राइक्लिनिक. ट्राइक्लिनिक का एक ही टाइप है, दैट इज प्रिमिटिव. तो ट्राइक्लिनिक में क्या है, एक भी एक्सियल लेंथ इक्वल नहीं है, एक भी एक्सियल एंगल इक्वल नहीं है. सो देयरफॉर ट्राइक्लिनिक इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल. मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल. नाउ रोम्बोहेड्रल. रोम्बोहेड्रल के भी एक टाइप है, दैट इज प्रिमिटिव. तो A इज इक्वल टू B. रोम्बोहेड्रल में क्या है, सारे एक्सियल लेंथ इक्वल है और सारे एक्सियल एंगल्स इक्वल है बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. तो रोम्बोहेड्रल में और क्यूबिक में फर्क समझा. सी क्यूबिक का सारा एक्सियल लेंथ इक्वल है, रोम्बोहेड्रल का भी इक्वल है, बट क्यूबिक में सारे एंगल्स 90 है, रोम्बोहेड्रल में सारे एंगल्स इक्वल तो है ही बट दे आर नॉट 90, और उसके वो करस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स है. नाउ हेक्सागोनल. हेक्सागोनल का भी एक ही टाइप है, तो दैट इज प्रिमिटिव. तो हेक्सागोनल में क्या होता है, A इज इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C and alpha and beta they are 90 degrees and gamma is 120 degrees and ये उसका एग्जांपल है. तो स्टूडेंट्स इट इज क्वाइट टफ टू रिमेंबर. सो उसको याद रखने के लिए हमने एक इजी तरीका बनाया है. तो पहला आप लोग ये याद रखना है. तो क्यूबिक के कितने टाइप से, 3, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 1 1 1.
तो आप लोग हमेशा ये नंबर याद रखना है। क्या है ये नंबर? 32421111। याद हो जाएगा? 32421111। तो चलो अभी ये पूरा टेबल अच्छे से याद रखने के लिए हम लोग एक नेमोनिक सीखते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल रिमेंबर फॉर ए लॉन्गर टाइम। क्या बोला? क्यूट, तेरा और मेरा ट्रिक, रहना हिट। क्यूट है, तेरा और मेरा ट्रिक। तेरा और मेरा ट्रिक कैसा है? क्यूट है और रहना हिट। कैसा रहना है हमें? हिट रहना है। ठीक है, तो क्या बोला? क्यूट, तेरा और मेरा ट्रिक, रहना हिट। हमारा ये नंबर्स क्या है? 32421111। करेक्ट। क्यूबिक के कितने टाइप से? 3 टाइप से। क्या था? सिंपल, देन बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। याद हो जाएगा क्यूबिक के टाइप। टेट्रागोनल के कितने टाइप है? पीबी याद रखने का। क्या बोलने का? पीबी। पी मतलब प्रिमिटिव, बी मतलब बॉडी सेंटर्ड। याद हो जाएगा ना? ऑर्थोरम्बिक, ऑर्थोरम्बिक के 4 टाइप से। टोटल कितने टाइप्स पढ़ा है हमने? 4 ही तो पढ़ा है, और सबके सब ऑर्थोरम्बिक में आते हैं। कौन कौन आता है? सिंपल ऑर्थोरम्बिक, बॉडी सेंटर ऑर्थोरम्बिक, फेस सेंटर ऑर्थोरम्बिक एंड एंड सेंटर ऑर्थोरम्बिक। हो गया सब, इतना ही पढ़ा है, और सबके सब ऑर्थोरम्बिक में आते हैं। मोनोक्लिनिक में पी याद रखने का। क्या बोलने का? पी, प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर। ओके, टेट्रागोनल के लिए पीबी बोलने का। याद हो जाएगा ना? नाउ ट्राइक्लिनिक, उसका तो एक ही टाइप है। क्या है? पी। रोम्बोहेड्रल, उसका भी एक ही टाइप है। क्या है? पी। हेक्सागोनल का भी एक, पी, प्रिमिटिव। इज इट हो गया अभी? इट्स वेरी वेरी इजी वे टू रिमेंबर। अभी देखो ये लैटिस पैरामीटर्स को कैसे याद रखने का, ये भी बहुत इजी है स्टूडेंट्स। देखो, क्यूबिक इज द मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल हमने पढ़ा है ना? तो क्या करने का? पहले सारे लैटिस पैरामीटर्स को इक्वल करने का। ओके, पहले सारे लैटिस पैरामीटर्स को इक्वल करने का। तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। नाउ जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, ये सीक्वेंस बराबर, ये सीक्वेंस याद रखने का। जब हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं तो क्या करने का? इन दोनों को अनइक्वल करने का। तो a इज इक्वल टू बी बट b इज नॉट इक्वल टू c। बस, बाकी सब जैसे का वैसे, ये जैसे का वैसे। अभी जब हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे तब इसको अनइक्वल करने का। तो एक भी एक्सियल लेंथ इक्वल नहीं है अभी। करेक्ट, a इज नॉट इक्वल टू b विच इज नॉट इक्वल टू c। नाउ ये सारे एंगल्स को डिस्टर्ब नहीं करने का, सारे एंगल्स इक्वल है। तो देखो कैसे किया हमने, ये सब इक्वल है, इसको इन दोनों को अनइक्वल बनाया, अभी इन तीनों को अनइक्वल बनाया। अभी किसकी बारी है? अभी एंगल्स की बारी है। तो ये तो जैसे का वैसे रहेगा। क्या? a इज नॉट इक्वल टू b विच इज नॉट इक्वल टू c। बट अभी क्या करने का? इसमें एक एंगल को हम लोग क्या करना है? अनइक्वल बनाना है। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू गामा, ये है 90 डिग्रीज। ठीक है, बट बीटा जो है दैट इज नॉट 90 डिग्रीज। समझा? बहुत आसान तरीका है इसको याद रखने का। अभी ट्राइक्लिनिक, अभी देखो हम लोग ने एक, ये बीटा अनइक्वल है राइट, और अल्फा और गामा इक्वल है। अभी क्या करेंगे? ये तो ऑब्वियसली कैसा है? अनइक्वल है ना। a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। सबको अनइक्वल बना दिया, दैट इज नॉट इक्वल टू 90। क्लियर? नाउ रोम्बोहेड्रल में वापस क्या करने, एक बार ये सारा अनइक्वल बना दिया तो वापस क्या करने का? सबको इक्वल बनाने का। अगेन इससे स्टार्ट करने का, ये साइकिल अपना। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा? ये आएगा। तो ऐसा साइकिल रिपीट करने का। तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल, इसमें भी क्या आएगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। बट तो फिर क्यूबिक में और रोम्बोहेड्रल में फर्क क्या है? रोम्बोहेड्रल में एंगल सेम है बट वो 90 नहीं है, वो फर्क है। ठीक है, बहुत इजी है। अभी नेक्स्ट क्या रहेगा? हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों को इक्वल बनाते हैं ना, तो इसको भी सेम करने का। a इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। देन सिर्फ इसका एंगल्स में क्या रहेगा? एंगल्स में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 एंड गामा इज इक्वल टू 120। हो गया। दिस इज वेरी वेरी इजी वे टू रिमेंबर। ओके, so students, there are how many major types? There are 7 major types of unit cell, and if you add na 3 plus 2 plus 4 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1, तो ये कितना मिलता है? ये 14 मिलता है। So there are 7 major types of unit cells
and total there are 14 lattices are there. Okay, and those lattices are called as Bravais lattices. So those 14 lattices corresponding to the 7 crystal systems are known as Bravais lattices. So अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं with contribution of atoms per unit cell. This is very important and very difficult to understand. तो बहुत सारा स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहता है, बट हमने इसको बहुत आसानी से बताया है, बहुत आसान तरीके से बताया है. सो देखो, पहला हम लोग शुरू करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम. ठीक है, सो देखो ये कॉर्नर एटम है कि नहीं, राइट. सो ईच कॉर्नर एटम, देखो ध्यान से, इज शेयर्ड बाय टोटल हाउ मेनी यूनिट सेल्स. देखो ये कॉर्नर एटम है अपना, देखो ऐसा यूनिट सेल्स रहता है. हाउ ब्यूटीफुल इट इज. देखो again I will tell you that these lines are imaginary, these are just to understand the geometry. So अभी देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉर्नर एटम पकड़ते हैं. कैन आई से ये कॉर्नर एटम, ये जो पहला वाला यूनिट सेल है हमारा, वो यूनिट सेल ने शेयर किया. जो इसके पीछे वाला है ना, ये दैट इज सेकेंड यूनिट सेल, इसने शेयर किया, राइट. फिर ये तीसरा वाला, फिर ये चौथा वाला. मीन्स ये फर्स्ट लेवल में एक कॉर्नर एटम कितना यूनिट सेल शेयर करता है, एक, देन ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार. सेम मैनर में जो ऊपर का जो लेयर है उसमें भी देखो चार लोग शेयर कर रहे हैं. ये फिफ्थ है ना, ये सिक्स्थ, फिर ये सेवेंथ और फिर एट्थ. मीन्स ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय 8 unit cells, 4 on the first layer and 4 on the second layer. Okay, so contribution of corner atom per unit cell will be 1/8. Understood? 1/8 कैसे है समझा? This is a very very important explanation. अगर आप लोग ये एनिमेशन देखोगे then you will never forget this. Okay, this is very easy way to remember. Okay students, so अभी हम लोग देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम पर यूनिट सेल. सो देखो हम लोग इसका देखना, ये बॉडी सेंटर एटम, करेक्ट. सो देखो इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल देखो क्या होता है. सी, ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का रिप्रेजेंटेशन है. सी यहाँ पे, सी हाउ 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 ऐसा रियल, सी ऐसा रियल में रहता है, ऐसा रियल में अरेंजमेंट रहता है. तो इट लुक्स वेरी वेरी नाइस. ठीक है, सो देखो ईच बॉडी सेंटर्ड एटम इज शेयर्ड बाय दैट यूनिट सेल इटसेल्फ. अभी एक बॉडी सेंटर्ड एटम उसके अंदर ही है ना, दूसरा शेयर नहीं कर रहा है. तो कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम पर यूनिट सेल इज 1. समझा? सो अभी देखते हैं फेस सेंटर्ड एटम. देखो ये फेस सेंटर्ड एटम, दिस इज अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. Now see, this is the representation. So देखो, so we can say that each face center atom is shared by 2 unit cells. कैसा? देखो ये फेस सेंटर एटम है, वो इसने शेयर किया, इसने शेयर किया. अभी इसका और ऊपर वाले का भी कुछ रिलेशन नहीं है, इसका और ये जो पीछे वाला जो है ना उसका भी रिलेशनशिप नहीं है. तो इसके लिए हम लोग कहेंगे each face center atom is shared by 2 unit cell. That's why contribution of face center atom per unit cell is 1/2. तो चलो इसको और एक बार और इजी वे में समझाने के लिए हमारे पास एक तरीका है. तो हम लोग इसको समझते हैं अपना बिल्डिंग का एग्जांपल देके. ठीक है, अभी सपोज 2 फ्लैट्स हैं. अभी 2 फ्लैट्स की बीच की जो दीवार है वो कितने फ्लैट शेयर करेंगे, एक अपना वाला और एक बाजू वाला, करेक्ट. सो इसलिए दिस इज द फेस सेंटर एटम. तो फेस सेंटर एटम कितना लोग शेयर करेंगे, 2 यूनिट सेल. ठीक है, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर एटम पर यूनिट सेल क्या रहेगा, 1/2. अंडरस्टूड? अभी हम लोग देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर एटम. कहना से ये एज है, ये एज कितना लोग शेयर कर रहा है, देखो सी, ट्राई टू इमेजिन. सी, दिस इज अ यूनिट सेल. नाउ ये एज है,
सपोज एच के सेंटर में कुछ एटम है, तो ये पहला हम लोग एच समझते हैं। ये एच कितने लोग शेयर कर रहे हैं? एक, राइट, 2, 3, 4, तो 4 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ एच सेंटर एटम विल बी 1/4, करेक्ट। अभी हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ठीक है। सो देखो, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जैसे कि हमने देखा एटम्स कहां पे रहता है स्टूडेंट्स? कॉर्नर पे ना। कितने कॉर्नर एटम्स है? 1, 2, 3, 4 और नीचे 4, सो ऊपर 4 और नीचे 4, सो टोटल 8 कॉर्नर एटम्स आर देयर। सो in case of simple cubic unit cell, number of atoms per unit cell in simple cubic structure is equal to number of corner atoms into contribution of corner atoms per unit cell। तो यहाँ पे number of corner atoms कितने हैं? 8 है। contribution of corner atom अभी देखा हमने कितना आता है? 1/8 आता है। टोटल कितना हो गया? 1। so finally we can conclude that number of atoms per unit cell in simple cubic structure is 1। अंडरस्टूड। सो अभी हम देखते हैं फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एटम्स आर प्रेजेंट अलोंग विथ कॉर्नर एट बॉडी सेंटर पोजीशन आल्सो, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स per unit cell present in BCC unit cell will be number of corner atoms into contribution of corner atoms per unit cell plus number of body center atom into contribution of body center atom per unit cell, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे एटम्स कहां पे रहता है? कॉर्नर पे रहता है और बॉडी सेंटर पोजीशन पे रहता है, राइट। सो यहाँ पे कॉर्नर एटम्स कितने? 8, कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 प्लस नंबर ऑफ बॉडी सेंटर एटम कितना है? 1, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1, देयरफॉर 1 into 1, तो टोटल कितना आएगा? 1 + 1, दैट विल गिव 2। सो नंबर ऑफ एटम्स इन BCC यूनिट सेल विल बी 2। अंडरस्टूड। अभी हम लोग देखते हैं फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एटम्स जो है कॉर्नर पे तो रहता ही है, साथ ही में एट ऑल फेस सेंटर्स रहेगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना रहेगा? नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम्स पर यूनिट सेल, राइट, प्लस नंबर ऑफ फेस सेंटर एटम्स इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर एटम पर यूनिट सेल। तो कॉर्नर एटम कितना? एज यूजुअल 8 into 1/8 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 into 1/2, क्योंकि नंबर ऑफ फेस सेंटर एटम कितना है? 6 है, क्योंकि देयर आर 6 फेसेस। नो, नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर एटम अभी देखा हमने 1/2, तो 6 into 1/2 कितना आएगा? 3, 1 + 3 कितना आएगा? 4। सो टोटल देयर आर हाउ मेनी एटम्स? 4 एटम्स। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल इज इक्वल टू 4। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।